नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत योजना के तहत बीदर रेलवे स्टेशन विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने वीडियो संदेश में कही ये बात। कर्नाटक में हिंदू लड़की को ले जा रहे मुस्लिम चालक को पीटा, दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कांग्रेस विधायक विजय वेडेटीवार बने नेता विपक्ष, ठहाकों के बीच अजित पवार सीट तक लेकर गए। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में अमित शाह का करारा जवाब, कहा गठबंधन नहीं दिल्ली के बारे में सोचे विपक्षी दल। अब समाचार विस्तार से। 6 अगस्त 2023 को सुबह 9:30 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत योजना के तहत बीदर रेलवे स्टेशन विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने वीडियो संदेश जिले के सभी शासकों, पार्टी अधिकारियों और सभी गणमान्य व्यक्तियों को इस शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नमस्कारಗಳು। ಬೀದರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ಅಮೃತ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 6 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು निम्मल्ली नन्ना कळकळेय विनंती। जय। बीदर जिला के औराद भी तालुका में सरकारी प्राथमिक स्कूल कोल्लूर कर्नाटक सरकार में राज्य के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया उनका 76वां जन्मदिन मनाया गया है। कांग्रेस के नेता सुधाकर कोल्लूरनी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के 76वें जन्मदिन के अवसर पर कोल्लूर सरकारी प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों को नोटबुक वितरण किया गया। इस अवसर पर एकलार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता शिवशंकर, युवा नेता चांद पाशा, मौलाना साहब कोल्लूर, राजकुमार हुनसेटे, विजय कुमार देगलवाड़ी, स्कूल के मुख्य उपाध्यक्ष कल्लप्पा सिद्धप्पा, स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी सभी उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता सुधाकर कोल्लूर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के 76वें जन्मदिन के अवसर पर कोल्लूर सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को नोटबुक वितरित की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता शिवशंकर, मुस्लिम समुदाय के नेता चांद पाशा, राजकुमार हुनसेटे, विजय कुमार देगलवाड़े, प्रमुख गुरु कल्लप्पा, शिक्षक राजकुमार सिद्धप्पा भी उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ನಮ್ಮ एकलार ग्राम पंचायत ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳ್ಳೂರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಂದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುತ್ಸದಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ವಿಚಾರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರ 76ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ। ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಿರಲಿ,
ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ RT ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ 25% ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 76ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಣಿಗಂಪುರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಸದುಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಳ್ಳೂರು. कर्नाटका में मॉडल पुलिसिंग के कई मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं। इसके जरिए सामाजिक सद्भाव भी कोशिश की है। अब राज्य में एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ के दक्षिण कन्नड़ जिले में 2 अगस्त की रात को बेलथंगड़ी तालुके में एक धार्मिक जगह के पास हिंदू कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो रिक्शा चालक को पीटा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना रात के करीब 9 बजे हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू कार्यकर्ता संघ परिवार के थे। उन्होंने ऑटो चालक मोहम्मद आशिक के साथ संभवतः इसीलिए मारपीट की थी क्योंकि ऑटो में जो यात्री थी वह एक हिंदू लड़की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आशिक तालुका के कुजीरे का रहने वाला है। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने गुरुवार 3 अगस्त को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कर्नाटका के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद सिद्धरामैया की यह पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। हालांकि सीएम सिद्धरामैया और पीएम की क्या बातचीत हुई है, अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। इसी साल कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर कर्नाटका में शानदार जीत हासिल की है। पुणे करवे रोड पर चैम्बर खराब होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुणे के ट्यूबर सागर पंडित जो सड़क के खड्डों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने चैम्बर पर हल्दी और फूल का हार डालकर जनता को जागरूक किया और सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे सागर पंडित के सामाजिक कार्य को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। यह सरकार और प्रशासन की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद ठेकेदार ने तुरंत उस चैम्बर को रिपेयर करने के लिए चैम्बर भेज दिए। पुणे महाराष्ट्र से मुजफ्फर शेख की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र विधानसभा के नए नेता विपक्ष नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विजय वडेट्टीवार के नाम का ऐलान किया है। बता दें कि अजित पवार गुट के शिवसेना भाजपा के साथ सरकार में शामिल होने के बाद से बीते एक महीने से नेता विपक्ष का पद खाली था। इससे पहले अजित पवार इस पद पर थे। अजित पवार ने 30 जून को इस पद से इस्तीफा दे दिया था और 2 जुलाई को वह सरकार में शामिल हो गए। वडेट्टीवार के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और विपक्ष के नेता अजित वडेट्टीवार को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। जब अजित पवार अजय वडेट्टीवार को नेता प्रतिपक्ष के आसन तक लेकर जा रहे थे तो सदन में दोनों पक्ष की ओर से जमकर ठहाके लगाए जा रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले खुद इस पद पर थे और अब वह सरकार के साथ बैठे हैं। निलंगा तालुका में औराद शाहजहानी को एक नए तालुका के रूप में मंजूरी देने की मांग को लेकर आज गांव के ग्रामीणों, व्यापारियों और किसानों ने एक स्वतः स्फूर्त मार्च निकाला। निलंगा जाकर उप विभागीय अधिकारी को एक बयान दिया। लातूर जिले के निलंगा तालुका में औराद शहर के नागरिकों, व्यापारियों और किसानों ने बालाजी मंदिर मुख्य बाजार से ग्राम पंचायत कार्यालय से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक का एक मार्च निकाला। तालुका की मांग का एक बयान उन्हें दिया गया। इस अवसर पर बालाजी भंडारे, दीपक थेटे, अमोल ढोरसिंगे, भरत बियानी, हाजी सराफ, नूर पटेल, साउद मुल्ला, रविंद्र गायकवाड़, पद्म सिंह पाटिल, जीवन कामले, राहुल मोरे, राजू रेड्डी, महेंद्र कामले, सुरेश पाटिल, अभिषेक, शेख खमार, विलास कामले, शाहजहान नाइकवाड़े, वेंकट मोरे, पंकज पाटिल, महबूब शेख, कांग्रेस तालुका अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल, डॉक्टर अरविंद भांतमरे, सुधाकर पाटिल, नंदू भंडारे सहित औराद, तरगखेड़ा माने, बोरसुरी, होसुर तांबरवाड़ी, हलसी, शलगी, सावी आदि औराद परिसरों के 4 जिला परिषद मंडलों के नागरिक, किसान, व्यापारी आदि उपस्थित रहे। लातूर से दत्ता कांबले की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का बॉस कौन? लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल? दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई लंबे समय से जारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 लेकर आई है, जिस पर बीते कुछ दिनों से दिल्ली सहित पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में भी इस बिल को लेकर एनडीए और विपक्षी दलों में रार मची है। उस पर अमित शाह ने विपक्षी दलों और सांसदों के सवाल का जवाब दिया। अमित शाह ने आगे कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है, इसीलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। ज्ञान व्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को एएसआई सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा, सर्वे नहीं होने दिया जाना चाहिए। मैंने इस पर मेल भी रजिस्ट्री को भेज दिया है। हाईकोर्ट का ऑर्डर भी। वहीं सीजेआई ने कहा कि वो मेल देखकर सुनवाई की तारीख तय करने को लेकर फैसला लेंगे। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। टमाटर की कीमतों में महीने भर से जारी तेजी के बीच थोक व्यापारियों ने आने वाले दिनों में इस सब्जी के भाव 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की आशंका जताई है। थोक कारोबारियों ने आवक कम होने से टमाटर के थोक दाम बढ़ने की बात कही है। उनका कहना है कि इसका असर खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। दिल्ली स्थित आजादपुर टमाटर एसोसिएशन के अध्यक्ष और कृषि उपज विपणन समिति के सदस्य अशोक कौशिक ने कहा, पिछले 3 दिनों में टमाटर की आवक कम हो गई है क्योंकि भारी बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्रों में फसल खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि थोक बाजार में टमाटर के भाव 160 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जिसके कारण खुदरा कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि सब्जियों के थोक विक्रेताओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि टमाटर, शिमला मिर्च और अन्य मौसमी सब्जियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। कुछ महिला सांसदों ने बुधवार को विदेशी मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर उस बच्ची के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जिसे उसके माता पिता पर उचित व्यवहार नहीं करने के आरोप लगाने के बाद सितंबर 2021 से जर्मनी में एक बाल देखभाल केंद्र में रखा गया है। बच्ची की मां धराशाह जर्मनी में बाल देखभाल केंद्र से अपनी बेटी को निकालने के लिए सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए मंगलवार को संसद परिसर में थी। बच्ची को चोट लगने के बाद 23 सितंबर 2021 को जर्मनी के युवा कल्याण कार्यालय की देखरेख में रखा गया था। वह उस समय 7 महीने की थी। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता सुप्रिया सूले और वंदना चौहान, समाजवादी पार्टी सदस्य जया बच्चन और शिवसेना यूबीटी सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला की ओर से जयशंकर से मुलाकात की और मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत योजना के तहत बीदर रेलवे स्टेशन विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने वीडियो संदेश में कही ये बात।
कर्नाटक में हिंदू लड़की को ले जा रहे मुस्लिम चालक को पीटा, दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कांग्रेस विधायक विजय वेडेटीवार बने नेता विपक्ष, ठहाकों के बीच अजित पवार सीट तक लेकर गए। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में अमित शाह का करारा जवाब, कहा गठबंधन नहीं दिल्ली के बारे में सोचे विपक्षी दल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।